پیپلز پارٹی کے اویس قادر شاہ اسپیکر سندھ اسمبلی منتخب ہو گئے. عہدے کا حلف اٹھا لیا. پیپلز پارٹی کے اینتھنی نوید ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی بن گئے. اسپیکر کے انتخاب کے لیے مجموعی طور پر 147 ووٹ کاسٹ ہوئے. اویس قادر شاہ نے 111 ووٹ حاصل کیے جبکہ ایم کیو ایم کی صوفیہ سعید شاہ نے حاصل کیے. اویس قادر شاہ حلف اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایوان میں بھٹو زندہ آباد کے نعرے گونجنے لگے. اس کے بعد انہوں نے سندھی زبان میں حلف اٹھایا. سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے اویس قادر شاہ سے حلف لیا. مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان 224 ووٹ لے کر اسپیکر اور ظہیر اقبال چنڑ 220 ووٹ لے کر ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے. مریم نواز نے سیٹ سے اٹھ کر ملک احمد خان اور ظہیر اقبال چنڑ کو مبارکباد دی. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے لیے ملک احمد خان کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے احمد خان بچر سے تھا. اسپیکر کے انتخاب کے لیے 3 پولنگ بوتھ بنائے گئے تھے جہاں 327 اراکین نے ووٹ کاسٹ کیے. مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان 224 ووٹ لے کر اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے. سنی اتحاد کونسل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار تبدیل کر دیا. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے میاں اسلم اقبال کی جگہ رانا آفتاب احمد خان کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنایا گیا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں میاں اسلم اقبال کی مشاورت سے پارٹی قیادت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے رانا آفتاب احمد خان کو نامزد کیا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری سے بلوچستان اسمبلی کے 9 منتخب اراکین کی ملاقات. بلوچستان اسمبلی کے 9 منتخب اراکین نے زرداری ہاؤس میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران بلوچستان میں حکومت سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایم پی اے عبد المجید بادیانی نے بھی شرکت کی. ملاقات کے دوران تمام اراکین صوبائی اسمبلی نے حکومت سازی میں پیپلز پارٹی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ الیکشن میں پی پی کارکنوں کو شہید کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے دوران ہمارے کارکن شہید ہوئے. الیکشن کے دوران پی پی یا کسی بھی سیاسی جماعت کے سیاسی ورکر پر حملہ کرنے والوں کو ہم پکڑیں گے. قانونی طور پر شہداء کے خاندانوں کو انصاف دلائیں گے. الیکشن کے دوران جو کچھ ہوا افسوسناک ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو طلب کر لیا. گورنر نے نگراں وزیر اعلیٰ کی بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے. گورنر نے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو دن 11 بجے طلب کیا ہے. اجلاس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے اور اسپیکر کے بھی اسمبلی مشتاق غنی 9 منتخب اراکین سے حلف لیں گے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات. گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی ملاقات میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے گورنر پنجاب کو نگران سیٹ اپ کی 13 ماہ کی کارکردگی سے تفصیلاً آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے نگراں حکومت کی کارکردگی کے بارے گورنر پنجاب کو خطاب بھی پیش کی. گورنر پنجاب نے عوامی فلاح کے منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر محسن نقوی اور کابینہ کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ کے لیڈرشپ میں نگراں کابینہ نے عوامی خدمت، شفافیت اور گورننس کی اچھی مثال قائم کی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ اس الیکشن سے میں نے اخذ کیا ہے کہ تقسیم شدہ مینڈیٹ ان طاقتوں کو بہتر لگتا ہے جنہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہوں. اپنے بیان میں سراج الحق نے کہا کہ ہم نے الیکشن میں بہت محنت کی اور پہلی بار 750 حلقوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے. 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور 9 فروری کو نتائج آئے تو وہ دن میرے لیے بہت مشکل تھا. ہم نے بہت محنت کی اور نتائج نہ آئے. سراج الحق نے کہا کہ پاکستان میں ویسے بھی محنت کا پھل کم ملتا ہے. ملتان سلطانز کا کوئٹہ کو 181 رنز کا ہدف. گلیڈیٹرز کی بیٹنگ جاری. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا. سلطانز نے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بنائے. ریزا ہینڈرکس 72 رنز بنا کر نمایاں رہے. کپتان محمد رضوان نے 51 رنز سکور کیے. اس کے علاوہ عثمان خان 14 اور طیب طاہر نے 35 رنز بنائے. ملتان سلطانز نے 4 میچ کھیل کر 3 جیتے. گلیڈیٹرز نے اپنے تینوں میچ جیتے ہیں. پوائنٹس ٹیبل پر ملتان پہلے اور کوئٹہ دوسرے نمبر پر ہے. مودی سرکار کا پاکستان میں ایرانی کارروائی کرنے کا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا. ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا اور چند غیر ملکی ذرائع ابلاغ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ ایرانی فورسز نے پاکستانی سرزمین پر جیش العدل کا کوئی کمانڈر مارا ہے، جبکہ
पाकिस्तानी सरजमीन पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। जराये ने मजीद बताया कि असल में स्मगलर ग्रुप्स की क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक वाक्य को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर पेश करके झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कैरोलिना में भी रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल चौथी बार सदारती नामजदगी जीतने की जानिब एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जनूबी कैरोलिना में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप सदारती दौड़ में बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री पार्टी से खिताब करते हुए कहा है कि मैं जो बाइडेन को इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए तैयार हूं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि निकी हेली जो बाइडेन की और पार्टी की मजबूती के लिए सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करें। इसराइली फौज की गजा के इलाके में दिरुल बलाह में वहशियाना बमबारी ने 4 माह के यासिर की भी जान ले ली। गुज़श्ता 24 घंटों में 14 मासूम बच्चों दीगर 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में मासूम फलस्तीनियों के अमवात पर दोहरा मयार रखने पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मगरिबी रहनुमाओं को खून के प्यास से भेड़िए करार दे दिया है। एक तकरीब से खिताब में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार मगरिब ने फलस्तीनियों के अमवात पर आंखें बंद कर रखी हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे में मजीद 3000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए मतनाज़े मंसूबे का ऐलान किया है। ताहम आबादकारी से मुतालिक मतनाज़े इसराइली मंसूबे पर अमरीका ने मायूसी का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में शहीद होने वालों में 90% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है गजा में इंसानी और सेहत की सूरत हाल तबाह होने से गजा डेथ जोन बन गया है। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 12वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने मोदी के पुतले नजर आती किए। दिल्ली चलो मार्च के 12वें रोज भी हरियाणा पुलिस ने मुजाहिरीन पर शदीद लाठीचार्ज किया। एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों ने मोदी और दीगर बेची पे वुज़रा के पुतले जलाए। पंजाब हरियाणा सरहद पर किसानों के दिल्ली चलो मार्च को दोबारा शुरू करने के दौरान किसानों की हिलाकत पर किसान रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के चौथे दौर में हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सिख किसान दर्शन सिंह 62 साल किसान खानपुरी बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वादी नीलम के सियाहती मकामात पर रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आजाद कश्मीर की खूबसूरत वादी नीलम के सियाहती मकामात केरन, अपर नीलम, लवाद बाला, शारदा और अड़ंकेल, ताउबट, जागरा, शोंठर, ग्रेस और सरगन की वादियों में रात गए से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जिसकी वजह से बलोचिस्तान भर में बारिशों, ज़ाराबारी और बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए हैं। एंथनी नवीद ने 111 वोट हासिल किए। एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार राशिद खान ने 36 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीतने वाले सैयद अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली का चुनाव खुफिया रायशुमारी के जरिए हुआ। ताहम सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान ने वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती की गई और स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने नतीजे का ऐलान करते हुए बताया कि सैयद अवैस कादिर शाह 111 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। एमकेएम की उम्मीदवार सोफिया सईद ने 36 वोट हासिल किए। नौमुंतखब स्पीकर ने हल्फ उठाने के बाद कहा कि कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर सिंध के अवाम का मशकूर हूं। ओहदे के लिए नामजद करने पर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, फलियाल तालपुर का शुक्रगुजार हूं। सखर से पहली बार सिंध असेंबली का स्पीकर बना है। सिंध असेंबली ने पाकिस्तान की करारदाद पास की। सैयद अवैस कादिर शाह का कहना था कि गैर जानिबदार रहकर ओहदे पर काम करूंगा, तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा, माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान सिंध असेंबली ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 9 आजाद अरकान और जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक समेत 10 अरकान ने सिंध असेंबली के रुकन की हैसियत से हल्फ उठाया। स्पीकर आगा सराज दुरानी ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी और जीडीए के 3 अरकान ने हल्फ नहीं लिया। उधर ओकाड़ा और गर्दनवा में डकैतियां जारी हैं। कोट बाईपास पर डाकुओं ने सड़क ब्लॉक करके कार सवारों को लूट लिया। कार सवार राय डबडवा से 2.5 लाख नकदी, कीमती मोबाइल और घड़ी छीन ली। दूसरी वारदात में डाकुओं ने यासीन को 40 3R के करीब लूट लिया।
ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر موبائل فون اور ہزاروں روپے نقدی چھین لی۔ 34L بائی پاس پر ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار کو لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے حافظ حسان محمود سے اسلحہ کے زور پر موبائل فون اور ہزاروں روپے نقدی چھین لی۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ٹیکسلا کچہری کے باہر پولیس اہلکار کا ملزم کی گرفتاری کے دوران خاتون پر تشدد، خاتون کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ ملزم بصیر خان کو ٹیکسلا کچہری کے باہر پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، جس پر ملزم کی ماں اپنے بیٹے کی گرفتاری کے دوران آڑے آ گئی۔ پولیس اہلکار نے ملزم کی ماں کو تھپڑ مارے اور بصیر کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ٹیکسلا پولیس کا خاتون کے ساتھ ناروا سلوک برتنے پر سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی نے فوری طور پر نوٹس لے لیا۔ سی پی او راولپنڈی نے اے ایس آئی امتیاز ناصر کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایس پی پوٹھوہار سے معاملے کی مکمل انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ کانپور میں صوفی بزرگ حضرت بابا پیر سید جندن شاہ بخاری کے سالانہ عرس کی تقریبات کا پہلا روز عرق گلاب سے غسل دے دیا گیا۔ صدر سنی اتحاد جنوبی پنجاب جواد حسن گل قادری، جام اشرف، شیخ مظہر اور دیگر نے غسل دیا۔ قرآن خوانی کی گئی، محفل نعت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ معروف نعت خواں غلام مرتضی فریدی، وسیم رضا قادری نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ محفل نعت کے اختتام پر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ نارنگ منڈی کے پسماندہ علاقے میں معیاری اور طبی سہولیات سے آراستہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی مروا گائنی کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ 24 گھنٹے انسانی خدمت پر کام کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر گلاٹی سے۔ جی، نارنگ منڈی تھانہ روڈ پر گورنمنٹ گرل ہائر سیکنڈری اسکول کے بالمقابل مروا گائنی کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں لاہور سے سینئر ترین ڈاکٹرز اور کلینک کے اسٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر مروا گائنی کلینک کی سینئر لیڈی ڈاکٹرز سائرہ رحمت، ڈاکٹر انیبہ خان، ڈاکٹر سعدیہ حسن، ڈاکٹر طلحہ طاہر نے کوہ نور چینل کو بتایا کہ ہمارے ہاں زچہ بچہ، بانجھ پن اور امراض نسواں کا بہترین اور مؤثر علاج موجود ہے، جبکہ مروا گائنی کلینک میں الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، ایکس رے، ای جی سی، نارمل ڈلیوری اور ہر قسم کے آپریشن کی سہولت بھی موجود ہے اور 24 گھنٹے مروا گائنی کلینک میں علاج ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ ترین علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں گائنی کی تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آپ ایک بار ضرور وزٹ کریں، انشاءاللہ ہمارا معیار آپ کو پسند آئے گا۔ مزید جانتے ہیں ڈاکٹرز کی زبانی۔ جی، سب سے پہلے تو خدمت خلق کے لیے کھولا ہے، دوسرا بزنس بھی ہے، لیکن ہم ان دونوں سات چیزوں کو مکس کر کے آپ لوگوں کو ایسے کریں گے، ان شاء اللہ آپ ہمیں بھی دعائیں دیں گے اور آپ خود بھی ہیں اور آپ کو دور دراز کے علاقوں میں جانے کے لیے ایک الٹرا ساؤنڈ کیا جائے گا، ساتھ میں ان کو ایک پراپر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہاں میں نے دیکھا ہے گائنی کے پیشنٹ جو ہیں، خاص کر عورتیں، وہ بہت ہی زیادہ مطلب ان کے اندر نہ ایک ایچ پی ہے نہ کچھ ہے ان کے اندر، تو میں ایک پراپر طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہتی ہوں اور ساتھ میں آپریشن بھی ہے، یہاں نارمل ڈلیوریز بھی ہوں گی، ہر طرح کی، ایون کہ بچہ ان کا پیدا ہو رہا ہے، بچے کے لیے تو ساری سہولتیں ہوں گی، تو انشاءاللہ کسی قسم کی ان کو کوئی سہولتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس کوپیڈ ہے، ایمرجنسی ہے، گائنی کے سیزرین ہیں اور سیڈیز ہیں جو کہ غریب ہے ان کے لیے فری ہوگا اور جو جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے زیادہ وہ ہم نے چارجز بھی نہیں رکھے، 50% آف بھی ہے۔ رینالہ خود کے نواحی گاؤں 23 میں جعلی سروے ایجنٹ بن کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام استعمال کر کے سینکڑوں خواتین سے ہزاروں روپے بٹورنے لگے۔ اہل علاقہ میں جعلی سروے ٹیم کی خبر پھیلی تو جعلی سروے ٹیم کا ایجنٹ محمد وسیم اور مقدس بی بی موقع سے فرار ہو گئے۔ جعل سازوں کے ہاتھوں لٹنے والی خواتین سراپا احتجاج بن گئی۔ مزید احوال بتا رہے ہیں چودھری عمران اپنی اس رپورٹ میں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے لوٹنے والی خاتون منظر عام پر آ گئی۔ رینالہ خود کے نواحی گاؤں 23 سے لاکھوں روپے لے کر رفو چکر ہونے والی مقدس بی بی جو کہ اکاڑا شہر خالد ٹاؤن کی رہائشی ہے، اس نے 23 رینالہ خود کے نواحی گاؤں سے لاکھوں روپے بے نظیر انکم سپورٹ سروے کے نام سے لیے اور فرار ہو گئی اور اہلیان دے نے خاتون کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ سٹی رینالہ خود میں درخواست گزار دی۔
खवातीन ने एहतजाज करते हुए कहा है कि मुकद्दस बीबी आई है ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਕੰਗਾਲ ਆ ਤੇ ਸਕੀਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈ 23 ਟੂਬਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਅਕਰਮ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 23 ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਅੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਬੀਬੀ ਕਾੜੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਲੈ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਕਰਮ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹ खवातीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त से अपील किया खुदाया इन जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आरिफवाला की मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी सईद के फर्जंद अली हसन की दावत वलीमा इलाका भर की सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात और रिश्तेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी की रिपोर्ट में। आरिफवाला मोहल्ला शरीफपुरा की मारूफ शख्सियत हाजी सईद के फर्जंद अली हसन रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। अली हसन की दावत वलीमा शहर के निजी मैरिज हॉल में मुनक़द हुई जिसमें रिश्तेदार अजीज़ और कारब समेत साबका चेयरमैन सैयद मोहम्मद हादी जैदी, साबका कौंसलर सेठ सलीम चौहान, सियासी और समाजी शख्सियत सेठ इरफान चौहान, मोहम्मद अशरफ रहमानी, साबका कौंसलर साजिद अली असलम, असद हुसैन, रजा जैदी, अली असगर चौहान और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। हाजी सईद ने तमाम दोस्त अहबाब की अनवा किस्म के खानों से तवाज़ो की। तमाम शुरका ने हाजी सईद को इनके बेटे की शादी की गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर की इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग सदारत चेयरमैन सलीम अल्ताफ ने की जिसमें प्रिंसिपल अख्तर मनान, निसार अली, शकील जमान, मोहम्मद जमील प्राचा, मुश्तबा गिलानी, मेहताब सरवर, ट्रेड इंस्ट्रक्टर ने शिरकत की। मीटिंग में इदारे में तरबियत हासिल करने वाले बच्चों के वसी तर मफाद के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे इदारे का मकसद नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाना है ताकि पाकिस्तान में बेरोजगारी पर कंट्रोल पाया जा सके जो यकीनन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार साबित होगा। चेयरमैन सलीम अल्ताफ एडवोकेट ने कहा कि हमें कोहाट के नौजवान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हुनर सिखाने के लिए कोहाट की आवाम को एतमाद में लेना होगा। गैस ने सार्फिन को लाखों के बिल भेजकर अवाम के होश उड़ा दिए। मजीद जानते हैं लकी मरवत से कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए अवाम पर महकमा सुई नादरन गैस लकी मरवत ने बारी बार कम बिल बेचकर कयामत गा दी। 2 से 5 अफराद पर मुश्तमिल घरों को 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बिल बेच दिए। अवाम का कहना है कि जिनकी माहाना आमदनी ही बमुश्किल 30 से 40,000 है वो इतनी भारी बिल कैसे और कहां से अदा करेंगे। हुकूमत से दरखास्त है कि गैस की बिल बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तकरीबन 1000 से होकर 15,000 से 30,000 तक बिल आ चुके हैं। तो लिहाजा में हुकूमत से दरखास्त है कि इस पे सख्त अमल किया जाए और इस पे नजर आसानी की जाए। मौजूदा जो गैस की बिलें आई हैं, एक तरफ कमर तोड़ महंगाई है और केयर टेकर हुकूमत ने बिलों में बेतहाशा इजाफा किया है जो आम के बर्दाश्त में नहीं है। ये फैसला ये ना काबिल बर्दाश्त है और ना काबिल कबूल है। हम वक्त हुकूमत से मुतालबा करता है कि उसने जो बिल में जो बेतहाशा इजाफा किया है इसको वापस लिया है। सारिफीन का ये भी कहना है कि जिन घरों में सिर्फ एक चूल्हा जलता है और जिनकी औसत बिल माहाना 500 से लेकर 1,000 तक आता था उन्हें भी इस मरतबा 20,000 और 30,000 रुपए बिल तमाकर गरमा दिया गया है। ऊपर से गैस मीटर्स की रीडिंग और यूनिट्स भी आवाम की समझ से बलतर हैं। यानी गैस वालों ने जिसके लिए जीतना जी चाहा बिल तैयार कर लिया। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह, कोहिनूर न्यूज, लकी मरवत।
जाम नवाज अली बैरानी शहर में बदमनी गराज पुलिस शहरियों को तहफ्फुज देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। एक हफ्ते में दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातें। चोर रशीद राजपूत की अलमारी के ताले तोड़कर हजारों नकदी और खाने का सामान लेकर फरार हो गए। झुड्डू क्रिश्चियन मॉडल स्कूल में 2 रोजा साइंस और आर्ट्स नुमाइश का आगाज हो गया है। नुमाइश 2 दिन तक जारी रहेगी। मेरा नाम 2 रोजा अब्दुल साइंस मान है और और आर्ट्स मैं नुमाइश में 6ठी जमात से 10वीं जमात तक के तुलबा तालबात ने खूबसूरत मॉडल बनाकर प्रेजेंटेशन दी। तुलबा तालबात ने खूबसूरत मॉडल बनाकर ये साबित किया कि मुल्क की तरक्की साइंस की तरक्की से मशरूत है। साइंसी तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की अधूरी और नामुकम्मल है। दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग होने के लिए साइंसी तरक्की का ख्वाब पूरा करना होगा। क्रिश्चियन मॉडल स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद अफजाल ने कहा कि क्रिश्चियन मॉडल स्कूल इलाके का एक मयारी तालीमी इदारा है जो दौरे हाजिर और असरी तकाजों के मुताबिक तुलबा और तालबात को तालीम को फरोग देने के साथ साथ उनकी तरबियत का एहतमाम कर रहा है। तुलबा और तालबात की सलाहियतों को जला बख्शने के लिए स्कूल साइंसी नुमाइश का इनेकाद करता है जो वक्त की लाजमी जरूरत भी है। साइंसी नुमाइश 2 रोज तक जारी रहेगी। मेरा नाम अब्दुल मान है और मेरे वालिद का नाम जौलत है। मैं क्रिश्चियन मॉडल स्कूल की 8वीं जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आज आपको कायद आज़म या मज़ार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मज़ार कायद आज़म की आखिरी आराम का जगह, ये बहुत खूबसूरत जगह है। माहिर तामीरात ने याह्या खान मिर्चट ने इसे 1956 में डिज़ाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्रिश्चियन मॉडल स्कूल की एग्ज़ाम कंट्रोलर राबिया विलायत हूँ और हम लोगों ने जो इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि हमारे स्कूल के जो छोटे छोटे सितारे हैं उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उनके अंदर का टैलेंट को उनको ग्रूम करना, उनकी जो नॉलेज है उनको सामने लाना और पब्लिक को ये मैसेज देना कि बच्चों के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, उन्हें उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उभारना चाहिए। My name is Aisha. I belong to class 7B. My presentation topic is water cycle. The water cycle is the circulation of water through the process of evaporation, condensation, rain or rainfall. The water cycle is like a never-ending journey of water in which in nature the water cycle. So are you interested to listen about my project? Yes. So my name is Abiha Umar and I belong to class 7 and I am from Christian Model School Sidhu. So my project model is Masjid Aqsa. Masjid Aqsa is the first, मतलब कि second masjid in the world. Masjid Aqsa is first Qibla of the Muslims. Masjid Aqsa was located in Jerusalem and both Israel and Palestine. साइंस एग्जीबिशन रखने का मकसद हमारा ये था कि बच्चों में जो सलाहियत है उनको उभारा जाए। जितनी उन्होंने मेहनत की, जो उनके अंदर सलाहियत है, वो हमारे शहर के लोगों तक, उनके पेरेंट्स तक और उनकी मेहनत सबको दिखाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिश्चियन मॉडल स्कूल जो कि तालीम का गहवारा है और यहाँ हर किस्म की हम इवेंट्स करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जिसे ज़ाया करें। उसी रोशनी में हमने ये साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया है ताकि हमारे बच्चों की जो ख्वाबिदा सलाहियतें हैं उन्हें निखारा जाए। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं 5वीं जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमने ये बनाया देहाती ज़िंदगी और हमें 4 जमात ने बनाया, तला ब्रोदर, जाफ़र ब्रोदर, साइम ब्रोदर। देहात में रहने वालों की देहाती कहलाते हैं। देहात मतलब ऐसी जगह जहाँ लोग कच्चे पक्के मकानों में रहते हैं। हर तरफ कुदरती हुस्न नज़र आता है, हर तरफ सब्ज़ ही सब्ज़ नज़र आता है। देहात की सुबह परसकून और ताज़ा होती है। देहात में रहने वालों की खुराक सादा और ताज़ा होती है। डेरा गाजी खान में मेला मवेशियां 2024 सज गया है। मेले में बच्चों के खिलौने और सर्कस भी लगाए गए हैं। मेला देखने के लिए शहरों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। इस दौरान यहां पर मौजूद मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े भी शायकीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में मेला मवेशियान की रौनक के अरूज पर चारों सूबों के संगम पर वाक़िया शहर डेरा गाजी खान, जहाँ पर चारों सूबों से लोग नस्ली किस्म के घोड़े और ऊंट लेकर आते हैं, इनकी खरीदो फरोख्त करते हैं। इस मंडी में मेला भी लगाया जाता है। दूर दराज से लोग इसे एंजॉय करते हैं। खाने पीने के स्टॉल और मिठाई के स्टॉल भी लगाए होते हैं, जिससे लोग मिठाई खरीद कर अपने घर वालों और दोस्तों के लिए ले जाते हैं। बच्चों के लिए खिलौनों का स्टॉल, झूले और मौत का कुआं भी लगाया जाता है। बच्चे इन चीजों से बहुत एंजॉय करते हैं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, कोहिनूर, डेरा गाजी खान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की टंडुवाला यार आमद। उनका कहना था कि इंसाफ के निजाम को तेज और मौसर किया जाए। अवाम को सस्ते इंसाफ की फराहमी हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की टंडुलियार आमद के मौके पर वकला बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि इंसाफ के निज़ाम को तेज़ और मौसर किया जाए।
عوام کو سستے انصاف کی فراہمی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے مسائل کو جلد حل کر دیا جائے گا۔ جسٹس اور وکلا برادری اپنے اخلاق و کردار سے عدالت آنے والے لوگوں کو بہتر سے بہتر ریلیف فراہم کرے۔ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم معاشرے کا ایسا طبقہ ہے۔ معاملہ ظاہر ہے جو جج ہوتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ 7-11 جانچ چھڑانے کے لیے کرتے ہیں، اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں۔ اگر وہ کیس میں اکاؤنٹ نہیں ہوتا تو اس کے پاس اختیار ہے، اس کے بعد آپ اس کی اپیل بھی فائل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ضرور آئی ول میک شیور، میں جو بھی ڈسٹرکٹ کورٹ ججز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بھئی آپ اس چیز پہ نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ریشو بڑھتا چلا جائے اور صرف محض یونٹ کی وجہ سے ایسا کریں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ 7-11 میں اگر کوئی بھی ایسا ڈسپیوٹیڈ بات ہے جس پہ ایویڈنس ریکوائرڈ ہے تو غالباً 7-11 نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس کا اطمینان رکھیں، انشاءاللہ کوئی یونٹس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں کرے گا۔ ابھی آپ نے ایک اور کسی واقعے کا ذکر کیا کہ FIR ہو گئی، اس کا ایشو آ جاتا ہے جورسڈکشن کا۔ آپ لائرز ہیں، آپ اس کو ٹیک اپ کیجیے، وہاں پہ کسی بات کیجیے، اور جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن کیونکہ ایشو سے جورسڈکشن کا ہے تو اس لیے ہم شاید ڈائریکٹ مداخلت نہیں کر سکتے، آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، MIT صاحب سے آپ مل سکتے ہیں، اور وکیل کا معاملہ تو ہم تو وکیل کو اپنا حصہ ہی سمجھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جسٹس اور وکلا برادری کسی کی بھی عزت و نفس کا بھرپور خیال رکھا کریں۔ ہر انسان برابر ہے، اللہ نے جو مرتبہ انسان کو دیا اسے نعمت سمجھ کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر سینئر جسٹس شفیع محمد صدیقی، جسٹس جنید غفار، جسٹس امجد سیتو، جسٹس ارباب علی، جسٹس خادم حسین سمرو بھی چیف جسٹس کے ہمراہ موجود۔ کلات میں ADC کلات سراج بلوچ کی زیر صدارت PPHI کا ماہانہ جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں DSM PHI مجیب بلوچ سمیت کلات اور سراب کے تمام بیسک ہیلتھ یونٹس کے انچارجز نے شرکت کی۔ DSM مجیب بلوچ نے ADC کو PPHI کلات کی کارکردگی، BHUs کی تعداد، سٹاف کی تعداد، ایمبولینسز اور BHUs میں دستیاب ادویات اور دیگر سہولیات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سراج بلوچ کے زیر صدارت PPHI کا ماہانہ جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں DSM PPHI مجیب بلوچ سمیت کلات سوراب کے تمام بیسک ہیلتھ یونٹس کے انچارج صاحبان نے شرکت کی۔ DSM مجیب بلوچ نے ADC کو PPHI کلات کی کارکردگی، BHU کی تعداد، اسٹاف کی تعداد، ایمبولینسز اور BHUs میں دستیاب ادویات اور دیگر سہولیات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ADC نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BHUs آپ لوگوں کے گھر جیسا ہے، ان کی صفائی ستھرائی دیکھ بھال کرنا اور لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تمام انچارج صاحبان ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے BHU میں شجر کاری کریں، ڈاکٹرز اور اسٹاف اپنی حاضری یقینی بنائیں اور اپنے پیشے سے مخلص رہے اور اپنی کارکردگی مزید بہتر بنائیں۔ اوباڑوں میں آٹا بحران سنگین ہو گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد دہاڑی دار طبقہ پریشان ہے۔ آٹا یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی دستیاب نہیں، چکی مالکان نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ 1 من 5500 روپے کا ہو گیا۔ آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے غریب شہری 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ محکمہ خوراک کی طرف سے فلور ملز مالکان کو سرکاری ریٹ پر ہزاروں بوریاں گندم کی فروخت کی گئیں، اس کے باوجود بھی عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا۔ اور ناظرین، گڑھا موڑ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ 170 لیٹر شراب برآمد، ملزم کو جیل بھیج دیا گیا۔ DPO وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر SHO تھانہ گڑھا موڑ شبیر احمد ڈوگر اور ASI محمد منشا نے شراب کی چالو بھٹی تحویل میں لے لی۔ اس موقع پر SHO شبیر احمد ڈوگر نے کہا کہ منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ وہاڑی میں ہی یوریا کھاد کی بلیک میں فروخت جاری ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہونے کی وجہ سے کھاد مافیا کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا۔ مزید جانتے ہیں رپورٹ میاں عامر قریشی کی اس رپورٹ میں۔ وہاڑی کسان پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کھاد نہ ملنے کی وجہ سے کسان شدید پریشان ہیں۔ اس وقت گندم اور مکئی کی فصل کو یوریا کھاد کی اشد ضرورت ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہونے کی وجہ سے کسان یوریا کھاد بلیک میں خریدنے پر مجبور ہیں۔
फी बोरी 2000 रुपए तक इजाफी वसूल किए जाने लगे। किसानों का कहना है कि ब्लैक में खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक खाद की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा मियां आमर कुरैशी, कोहिनूर टीवी, विहाड़ी। टंडुवाला यार मीरपुर खास रोड क्वार्टर स्टॉप के करीब ताजिर अयूब शेख कंट्रोल शेड पोल्ट्री फार्म में आग लग गई, जिसके बायस करोड़ों की मशीनरी और सामान जल गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जामे कॉमसेट से इस्लामाबाद वाह कैंपस में फारिगुल तहसील एलुमिनाटी तलबा और तालबात के लिए शाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें जामे के बानी डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमसेट्स प्रोफेसर डॉक्टर SM जुनैद जैदी मेहमान खुसूसी थे। इस बारे में मजीद तफसीलात के लिए देखिए कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे सैयद इकबाल हैदर की ये रिपोर्ट। जामिया कॉमसेट्स इस्लामाबाद व कैंपस में फारुकुल तहसील एलुमनाई तलबा और तलबात के लिए इशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें जामिया के बानी रेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमसेट्स प्रोफेसर डॉक्टर SM जुनैद जैदी मेहमान खुसूसी थे। इसके अलावा मौजूदा रेक्टर जामिया सीनियर असातिज़ा और अफसरान के साथ फारुकुल तहसील तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। डायरेक्टर व कैंपस प्रोफेसर डॉक्टर आबिद ने आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा और कैंपस की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। तकरीब में जामिया के फारुकुल तहसील तलबा और तलबात जो मुख्तलिफ शोबा-ए ज़िंदगी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं ने भी अपने तासुरात का इजहार किया। शुरका ने इस प्रोग्राम में अपनी स्टूडेंट लाइफ की यादें ताज़ा की और इस तरह के प्रोग्राम को मुस्तकबिल में बाकायदा तौर पर जारी रखने पर जोर दिया। कैमरामैन अदनान अली के साथ सैयद इकबाल हैदर, कोहिनूर न्यूज। लियाकतपुर सहराए चुलिस्तान जोग फरीद के मकाम पर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रूही अमन मेला सज गया है। मेले ने सहरा की खामोश फिजाओं को मुअत्तर कर दिया है। मेले में नौजवान भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। मुख्तलिफ अक़साम के ऊंट भी इस दौरान दिखाई दे रहे हैं। तलहार में मारूफ बुजुर्ग औलियाए रोशन शाह बादशाह का उर्स अकीदतमंदों और मरीदों की जानिब से दरगाह पर चादरें चढ़ाई गईं। उर्स में सिंध के मशहूर पहलवानों ने भी शिरकत की और जोर आजमाई के मुकाबलों में कामयाब पहलवानों को इनामात दिए गए। दरगाह के अकीदतमंदों डॉक्टर निसार अली ख्वाजा समेत दीगर ने कहा कि तलहार शहर की मशहूर दरगाह का उर्स सरकारी सतह पर मनाया जाए। दूसरी जानिब टंडुवाला यार शहर का तारीखी कब्रिस्तान इंतजामिया की नजरों से ओझल है। कब्रिस्तान में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। मिट्टी चोरी होने लगी, एक भी दरख्त न रहा, कीमती दरख्त तक कट गए। खबड़ तारीखी दरख्त है, उसकी भी नस्ल कुशी जारी है। कब्रिस्तान से काट दिए गए हैं। जगह जगह आवारा कुत्तों के डेरे हैं। फातेह के लिए जाने वाले लोग डरने लगे, कहीं कोई कुत्ता काट ना ले। हैदराबाद में कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से मेहरान आर्ट काउंसिल में 2 रोजा सिंध आर्ट नुमाइश सजाई गई। नुमाइश में 32 से ज्यादा आर्टिस्ट हजरात के 50 फन पारे नुमाइश का हिस्सा बनाए गए हैं, जिसे देखने के लिए हैदराबाद की आवाम उमड़ ढाई है। नुमाइश का इफ्तिताह नामवर आर्टिस्ट मंजूर जुबैर की जानिब से किया गया। इस मौके पर महकमा कल्चर के डेप्यूटी डायरेक्टर हिदायतुल्लाह राजड़ समेत जामे सिंध आर्ट डिपार्टमेंट के सईद अहमद मंगी भी मौजूद थे। नुमाइश में सिंध भर के कल्चर को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ 32 आर्ट्स के ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर के फन पारे बनाए गए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जेर इंतजाम छठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब हुई। नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का इनेकाद पोलो ग्राउंड लाहौर में किया गया, जिसमें 85 टीमों के 350 शह सवारों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में शहबाज खेल क्लब मियांवाली, पाक जामेदार फ्रेंड क्लब मंडी बहाउद्दीन और अलवहाब क्लब मंडी बहाउद्दीन ने बिलतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। सिंगल लाइन टीम मुकाबले में पहली पोजीशन खान तबस्सुम खान, दूसरी राय इमरान शानी और तीसरी नदीम अख्तर लाड़ा ने अपने नाम की। सिंगल पोजीशन मुकाबले में मोहम्मद अशरफ खरल ने पहली, चौधरी आफ्ताब शबीर ने दूसरी और चौधरी अली हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने भी खुसूसी शिरकत की।
डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और टीमों में इनामात तकसीम किए गए। इख्तितामी तकरीब में रेंजर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली रग्बे और रेंजर्स बैंड ने मशहूर कुन धुनों से दाद समेटी। लुड्डी और घुड़ नाच का शानदार मुजाहरा भी पेश किया गया। नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का एहतमाम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने बाहमी इश्तराक से किया। एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने गुज़श्ता एक बरस में बहुत से कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए हैं, जिनमें उर्दन में विमेंस इंटरनेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप में पहली बार पाकिस्तानी खातीन नेज़ाबाजों की टीम ने शिरकत की। इवेंट में 10 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टीम ने तलवार मुकाबले में कांसी का तमगा अपने नाम किया। जनूबी अफ्रीका में मुनाकिदा अंडर 21 चैंपियनशिप 2023 में पाकिस्तान समेत 3 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टीम ने 8 तमगे जीते और मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। जनूबी अफ्रीका में मुनाकिदा वर्ल्ड कप 2023 में 9 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। पाकिस्तानी टीम ने मजमूई तौर पर दूसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी खिलाड़ी इरफान महमूद भट्टू टूर्नामेंट के दूसरे बेहतरीन नेजाबाज करार पाए। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान का मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 7वीं खेप रवाना कर दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गजा की आवाम के लिए इमदादी सामान की 7वीं खेप बजरिया कार्गो बहरी जहाज रवाना कर दी गई। तकरीब में पाकिस्तान में तैनात फलस्तीनी सफीर, वजारत खारजा के हुकाम, NDMA और मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल कराची पर मौजूद थे। इमदादी सामान सैयद पोर्ट मिस्र पहुंचने के बाद तकसीम के लिए गजा रवाना कर दी जाएगी। इमदादी सामान की खेप 300 टन जरूरी अशिया पर मुश्तमिल है, जिसमें दवाएं, कंबल, अशिया खुरनोश और दीगर जरूरी सामान शामिल है। पाकिस्तान की जानिब से अब तक गजा की मुसीबत ज़दा आवाम के लिए 6 परवाजों के जरिए 330 टन इमदादी सामान रवाना किया जा चुका है, जिसमें गर्म कंबल, खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल थी। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत और इमदाद का सिलसिला जारी रखेगा। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब का कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। रामगढ़ बाजार में गैर कानूनी मेगा करप्शन बेसमेंट मालकान की जानिब से सड़क पर कब्जे का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर लाहौर इकबाल फरीद को शालामार जोन में जारी गैर कानूनी बिल्डिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? और कार्रवाई हेलो, ओके जी, हम आपको सुन पा रहे हैं मलिक अयान, आप बताइए क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये शालामार जोन का वाकया है जहाँ पर रामगढ़ बाजार मुगलपुरा में सरकारी अराजी पर कब्जा हो रहा था, जिसको जो है मुतलका जोन शालामार जोन की जानिब से नक्शा भी जिसका मुकम्मल नहीं करवाया गया था। गैर कानूनी मेगा कमर्शियल तामीर थी और जिस पर जो है अहले इलाका सरापा एहतजाज थे कि इन्होंने रोड का 6 फुट जो हिस्सा है उसको भी अपनी बिल्डिंग में शामिल कर लिया, जिसको कोहिनूर न्यूज ने जो खबर नशर की उसके स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल ने वाकये का नोटिस लिया और मुतलका CCO लाहौर को फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि किसी को भी गैर कानूनी मेगा कमर्शियल तामीर का हरगिज इजाजत ना देंगे। अगर कोई MCL अमला या दीगर कोई अफसरान इसमें मुलवस होंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भी इस हवाले से दरखास्त दायर कर दी गई है, क्योंकि ये जो जगह जिसने रोड को अपने कब्जे में लिया है, ये जो जगह बताई जा रही है, ये भी जराये से मालूम हुआ कि मुकम्मल तौर पर सरकारी अराजी है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अयान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंतजामिया सार्फिन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी और शिकायत के अजाले के लिए 24 घंटे मुतहरिक है। आइस को अपने मुलाजमीन को सेहतमंद माहौल फराहम करने में भी पेश है। आइस को इंतजामिया की जानिब से एक स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदा अली अरशद की इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आइस्को इंतजामिया जहां मौजूद सार्फिन तक बिजली की फराहमी और बिजली से मुतल्लिका शिकायत के अजाले के लिए कोशा 24 घंटे मुतहरिक रहती है, वहां ही अपने मुलाजमीन को सेहतमंद माहौल फराहम करने में पेश रहती है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आइस्को इंतजामिया की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। मरियम नवाज के वजीर आला के लिए कागजात नामजदगी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब को जमा करवाए गए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार, अजमा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफीक, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, गजाली सलीम भट्ट समेत दीगर ने पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में कागजात नामजदगी जमा करवाए। वाज़ेह रहे कि कागजात जमा होने के बाद सेक्रेटरी असम्बली स्क्रूटनी के बाद हतमी नामों का ऐलान करेंगे। कल 11 बजे असम्बली इजलास में कायदे ऐवान का चुनाव होगा। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंतजामिया सार्फिन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी और शिकायत के अजाले के लिए 24 घंटे मुतहरिक है। आइस को अपने मुलाजमीन को सेहतमंद माहौल फराहम करने में भी पेश है। आइस को इंतजामिया की जानिब से एक स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे अली अरशद की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आइस्को इंतजामिया जहां मौजूद सार्फिन तक बिजली की फराहमी और बिजली से मुतल्लिका शिकायत के अजाले के लिए कोशा 24 घंटे मुतहरिक रहती है, वहां ही अपने मुलाजमीन को सेहतमंद माहौल फराहम करने में पेश रहती है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आइस्को इंतजामिया की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें मैन सिंगल और मैन डबल बैडमिंटन और मैन सिंगल मैन डबल टेनिस के मैचों का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में आइस्को के अफसरान और स्टाफ ने दोनों कैटेगरी में भरपूर शिरकत की और आइस्को इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद किए गए इवेंट को सराहा और कहा है इस किस्म के इवेंट का इनेकाद इनकी पेशा वराना जिम्मेदारियां मजीद बेहतर अंदाज में सर अंजाम देने में मददगार साबित होंगी और इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद बाकायदगी से होना चाहिए। प्रोडक्शन टीम के साथ अली अरशद के न्यूज इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सेनेट में कायदेवान इसहाक डार ने मुलाकात की। पंजाब में मामलात और मसाइल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर नई बनने वाली वफाकी हुकूमत के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब का कहना था पूरी कौम की नजरें नई हुकूमतों की कारकर्दगी से वाबस्ता हैं। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब इंशाअल्लाह बहुत तेजी से तरक्की करेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उम्मीद है कि सेनेटर इसहाक डार अपनी साबिका रिवायात के मुताबिक इंतहाई मेहनत से मुल्क की खिदमत जारी रखेंगे और आने वाली वफाकी हुकूमत मुल्क के मसाइल हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सेनेट में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी सेनेट में कौमी मिजाज को परवान चढ़ाती है। इस मौके पर सेनेटर इसहाक डार ने गवर्नर पंजाब को अपने फराइज मनसबी आसान तरीके से अदा करने पर मुबारकबाद भी पेश की। गाजियाबाद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सचिव दानियाल गुज्जर की टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई तालीमी इदारों के गर्दोनवाह में मनशियात फरोशी करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 8 किलोग्राम आइस बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये गाजियाबाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे मुलजमान को गिरफ्तार किया जिनके कब्जा से आला क्वालिटी की जो है वो मंशियात बरामद की गई है। मुलजमान के हवाले से देखा जाए तो जिस तरह से पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार किया बड़े ड्रामाई अंदाज में, क्योंकि मुलजमान कबायली इलाकों से मंशियात लाकर यहाँ पर ऑनलाइन फरोख्त भी करते थे, बल्कि उसकी खरीदो फरोख्त करते थे। जबकि SHO दानियाल गुजर जो वहाँ पर तैनात है, उन्होंने जो है वो अपनी टीम के हमरा मुलजमान दोनों को गिरफ्तार किया और 8 किलो से जायद की जो है वो मंशियात बरामद की। मंशियात रखने वालों का ताल्लुक जो बताया जा रहा है कि मुलजमान का पेशावर से बजरिया ऑनलाइन मंशियात मंगवाकर पोश इलाकों, तलीमी इदारों, हॉस्टल्स, कॉलेजेस
کے اعتراف نوجوان نسل کو منشیات بیچنے کا اعتراف بھی کیا گیا ہے. تو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا بھی جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا. جس طرح سے تعلیمی اداروں کے حوالے سے پولیس الرٹ ہے, آئی جی پنجاب, سی سی پی لاہور, ڈی اے جی آپریشن, اس کے علاوہ تمام ڈویژنل ایس پیز تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جا رہی. تو وہیں پر جو ہے وہ ایس ایچ او نے 2 ملزمان کو گرفتار کیا اور 8 کلو گرام آئس برآمد کی اور 9C کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. دونوں ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں. یہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں پہلے بھی منشیات فروشی کرتے تھے. ان کو گرفتار کر کے جیل بھجوایا گیا. حال ہی میں یہ جیل سے جو ہے وہ چھوٹ کر آئے تھے, پھر اس کے بعد یہی دھندا کرنا شروع کر دیا. بہرحال ایس ایچ او غازی آباد دانیال گجر اور ان کی ٹیم نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے 8 کلو جو ہے وہ منشیات برآمد کی ہے اور ان کے خلاف 9C کا مقدمہ درج کیا ہے. ڈی اے جی آپریشن کی جانب سے اور ایس پی کینٹ کی جانب سے ایس ایچ او دانیال گجر اور اس کی ٹیم جو تھی کہ بڑی ماہر ٹیم ہے اس کی, دانیال گجر کی, ان کو شاباش دی گئی ہے اور اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے. جی بہت شکریہ وسیم صابر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز, کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.